Welcome to We Learn. This is session 13 of Technology Commercialization. So in today's session, we are going to discuss about the innovation cycles. Under this category, first of all, we are going to discuss about the elements of innovation systems. After that, we are going to discuss about the process of innovation. Then we are going to discuss the pathway through innovation. And at last, in this session, we are going to discuss science or technology driven innovation. So let us start today's session with the topic that is elements of innovation systems. So basically when we talk about the innovation means creating something different, creating something new which doesn't exist in the environment. तो जब भी हम किसी इनोवेशन टेक्निक की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, तो ये एक हम कह सकते हैं ऐसा प्रिंसिपल है, ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम कोई न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू डायमेंशन, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं अपने रियल एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में, जिसको इम्प्लीमेंट करने से ह्यूमन एफर्ट्स रिड्यूस हो जाएं, जो आउटपुट है वो मैक्सिमम हो जाए. दैट मीन्स मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट शुड बी देयर. सो though decisions to pursue particular areas of innovation or to commercialize particular technologies are made by individual firms, these decisions are influenced by factors external to the company that are often beyond their control. That means किसी भी organization की जब हम बात करते हैं, there are many types of factors. These can be intrinsic factors, extrinsic factors. That means factors which are affecting the organization from their outside environment. So now innovation is really the result of individual genius or the actions of individual firms. जब भी हम किसी इनोवेशन की बात करते हैं, इनोवेशन टेक्निक, स्ट्रेटजी या पॉलिसी की बात करते हैं, तो ये कोई एक इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं होता जिसको कि कोई एक इंडिविजुअल कैरी आउट कर सकता है. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ कलेक्शन ऑफ फर्म्स इन्वॉल्व होते हैं. दैट मीन्स इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी विच इज़ कैरीड आउट टू perform some task in a different manner, in a new way. Now the next thing here is successful innovation requires the coordinated action of numerous actors who play vastly different roles. That means हम यहाँ पर different roles perform कर सकते हैं, different actions perform कर सकते हैं in different situations. क्योंकि किसी भी organization में, किसी भी एक particular enterprise में जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं, जो डिसीजंस हम लेते हैं, वो डिपेंड करते हैं हमारी सिचुएशन पर. उस टाइम पर क्या डिमांड है, वो डिमांड हो सकती है कस्टमर की हो, या हम कोई भी ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर क्रिटिकल ऑपरेशंस कभी कभार परफॉर्म करने पड़ जाते हैं. तो उसके बेसिस पर हम अपने ऑपरेशंस को, टास्क को, प्रोसेसेस को डिफाइन करते हैं. सो after that, taken together, these actors constitute an innovation system, each component of which is essential to the overreaching act of bringing new products, processes and services to the market. That means जो innovation process है उसकी हेल्प से हम मार्केट में न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं और प्रोसेस को ऑक्यूपाई करते हैं. Now the next thing here is, though innovation systems span the borders of individual nations, the ability of a nation to capitalize on new technology development is largely dependent on its particular system of innovation. अब यहाँ पर अगर हम इनोवेशन की बात करें तो जो भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी है जिसको कि अभी मार्केट में यूज़ किया जा रहा है, वो काफ़ी यहाँ पर डिपेंड करती है एक पर्टिकुलर सिस्टम पर. दैट मीन्स जो अभी करंटली हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ऑल सच प्रोसेसेस. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फ्रेमवर्क ऑफ इनोवेशन सिस्टम्स. सो बेसिकली इनोवेशन सिस्टम्स जनरली कंप्राइज 3 मेन एलिमेंट्स. जो ये इनोवेशन प्रोसेस है, अगर उसके फ्रेमवर्क की बात करें हम, तो इसमें 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं. अमंग दैम द फर्स्ट वन इज़ institutional arrangements that establish the general environment for innovation. पहला इसमें से होता है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट. दैट मीन्स प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर असाइनमेंट होना चाहिए एक्टिविटीज़ का, ऑपरेशंस का, टास्क का, सो दैट वी कैन कैरी आउट द एक्टिविटीज़ इन अ प्रॉपर मैनर. क्योंकि अगर हम ऑपरेशंस को प्री डिटरमाइंड नहीं करेंगे, पहले से ही डिसाइड नहीं करेंगे, तो उनको कैरी आउट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा. बिकॉज for proper functioning of an organization, proper scheduling is required.
So after that, resource endowments that provide the basic feedstock of innovation. दैट मीन्स जो यहाँ पर रिसोर्सेज होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, because to carry out any activity, to carry out any operation, to perform any task, we need resources. These resources can be either physical resources, here we can use the equipments, machines or tools. After that we can have human resources like labor. So there are n number of resources which are involved in a particular operation. So after that, proprietary functions typically performed by the private industry that harness resources and combine them into new products, processes and services. यहाँ पर जो थर्ड कंपोनेंट है वो होता है हमारा proprietary functions. यहाँ पर इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि सभी रिसोर्सेज को कंबाइन करके एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट किया जाए, एक न्यू प्रोसेस यूज़ की जाए, एक सर्विस प्रोवाइड की जाए कस्टमर्स को. Now after that, let us discuss about the implications of innovation systems. So these observations suggest that government may have a valuable role to play in helping firms overcome the barriers they face in bringing new technologies to market. अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस होती हैं. ये डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ये सजेस्ट करती हैं कि जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एनवायरनमेंट में, because there are n number of barriers, different types of barriers which are required to meet, to solve the problems which are involved in the market related to the technology, related to the economy and various other factors. Now after this, too many barriers to innovation simply represent the market at work producing efficient outcomes. किसी भी ऑपरेशन को जब हम परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी बैरियर्स होते हैं. अगर उन बैरियर्स को हम एक इनोवेशन टेक्निक की हेल्प से रिमूव कर सकें, उन प्रॉब्लम्स को ईजिली हम सॉल्व कर सकें, तो अपने टास्क को इफ़ेक्टिवली हम कैरी आउट कर सकते हैं. वी कैन परफॉर्म आवर टास्क इन अ बेटर मैनर. सो इफ़ अ फर्म कैन नॉट फाइंड फाइनेंसिंग, it is because financiers have determined that the technology is not worth developing or that the firm does not have an acceptable business plan. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंसिंग की हम बात करें, दैट मीन्स वहाँ पर कुछ फाइनेंसर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर फंक्शनैलिटी के लिए. सो इफ़ दे आर नॉट अवेलेबल इन अ ऑर्गेनाइजेशन, इन अ बिजनेस, देन it is very difficult to carry out the operations, the activities involved in a business plan. So if customers will not purchase a new product, it is because they have decided the product is too difficult to use, does not meet their requirements or may have undesirable side effects. Similarly, अगर यही कॉन्सेप्ट हम कस्टमर के बेसिस पर देखें तो कोई भी अगर कस्टमर है, डेली लाइफ से हम एग्जांपल लें, कोई भी एक न्यू प्रोडक्ट है, कस्टमर उसको यूज़ अगर नहीं करता है तो उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं. लाइक अमंग देम द फर्स्ट वन कैन बी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं, हो सकता है वो प्रोडक्ट उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना करता हो सकता है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हों, या कस्टमर को काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही हो उस प्रोडक्ट को यूज़ करने में. सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट. नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक हेयर एंड दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन. So technological innovation is the act of developing and putting to use new products and processes. जब भी हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बात करते हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का मतलब होता है किसी भी न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करना, उसको रियल लाइफ में यूज़ करना, अपने कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट की सर्विसेज से सेटिस्फाई करना. सो इट डिमांड्स नोवेल्टी इन आइदर द प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस, और वी कैन से इन बोथ द applications. Now the next thing related to the process of innovation here is basically innovation includes not only the development of entirely new products, processes and services that create new applications, but also the development of new products or processes. That means अगर हम इनोवेशन की बात करते हैं तो इनोवेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम कोई एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं या कोई हमने न्यू कॉन्सेप्ट यूज़ किया है या कोई न्यू सर्विस हमने प्रोवाइड की है अपने कस्टमर्स को. इसका मतलब ये भी होता है कि जो एग्जिस्टिंग सर्विस है उसमें हमने कुछ डिफरेंट किया, उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड किए सो एज टू सेटिस्फाई दी कस्टमर्स.
Now, the next thing here is innovation is more than just invention, which is the act of devising new products, processes, and services that are not obvious to someone skilled in the field and that represent clear departures from prior art. इनोवेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमने कोई एक न्यू प्रोडक्ट को इन्वेंट किया, न्यू प्रोसेस को स्टार्ट किया, डेवलप किया, हम डिज़ाइन कर रहे हैं कोई सॉफ्टवेयर या कोई प्रोडक्ट। यहाँ पर इनोवेशन का मतलब होता है कि किसी भी टास्क को हम कुछ डिफरेंट वे में कैरी आउट कर रहे हैं। दैट मीन्स वी आर परफॉर्मिंग द टास्क इन अ न्यू मैनर। So, innovation requires that inventions be reduced to practice, that new products, processes, and services be designed, manufactured, and adopted by users. Innovation की जो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है, जो मोस्ट नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, दैट it must be implemented, it must be used in our daily life by the users or the manufacturers. Now let us discuss the next topic here, that is the pathway through innovation. So, innovation rarely proceeds in a linear fashion from one well defined stage to the next. इनोवेशन क्या है, अगर हम उसे लीनियर फैशन में कैरी आउट करें तो काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, जिसमें कि हम एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में यहाँ पर ऑपरेशंस को कैरी आउट कर सकते हैं. सो मोस्ट इनोवेशंस टेक अ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड रूट फ्रॉम इन्वेंशन टू मार्केट प्लेस. जो इनोवेशन टेक्निक्स हैं उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रूट हमें एक्वायर करना होता है, सो एज टू मेक द प्रोडक्ट एग्जिस्टेबल इन अ मार्केट प्लेस. Now, often market perceptions generate ideas for new products that in turn stimulate scientific research. In addition, advances in technology can precede advances in the science base. That means किसी भी टेक्नोलॉजी का अगर हम एडवांसमेंट यूज़ करते हैं, उसको एडवांस, उसमें कुछ एडवांस फीचर्स ऐड करते हैं, तो उसका मतलब है कि हमने हमारे जो साइंस का बेस है उसको स्ट्रॉन्ग किया है, उसको एडवांस किया है. Now, basically, when we talk about the parallel computing, it is a most recent example of a major innovation that derived from advances in technology that preceded the underlying scientific theory. जब भी हम पैरेलल कंप्यूटिंग की बात करते हैं, पैरेलल कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि हम एक ही टाइम पर एट द सेम टाइम वी आर परफॉर्मिंग मल्टीपल ऑपरेशंस. So, parallel computers use multiple processing units simultaneously to conduct data or computations intensive calculations. Parallel computers का यहाँ पर एग्जांपल डिस्कस किया गया है, लाइक अगर एक ही टाइम पर एक कंप्यूटर पर मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं तो वो एक बेस्ट एग्जांपल होता है पैरेलल कंप्यूटिंग का. Now let us discuss the next topic here, that is science or technology driven innovation. So, science usually plays a subservient role in innovation, providing answers to questions posed at different points in the innovation process. साइंस क्या है, बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनोवेशन टेक्निक में, इनोवेशन प्रोसेस में, क्योंकि साइंस टेक्निक्स के हेल्प से ही, साइंस के मेथड्स के हेल्प से ही, फॉर्मूलेज लॉजिक्स के हेल्प से ही हम आंसर करते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस का, जो कि इनोवेशन के टाइम पर रिक्वायरमेंट होती है. So, however, scientific or technological discoveries do at times act as the genesis of new innovations by creating entirely new ways of serving existing or new market. यहाँ पर जो साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरीज़ हैं वो कभी कभार काफ़ी न्यू इनोवेशंस हमें प्रोवाइड करती हैं बाय क्रिएटिंग न्यू वेज ऑफ सर्विंग एग्जिस्टिंग और न्यू मार्केट्स. यहाँ पर ये न्यू वेज हमें प्रोवाइड करती हैं जिसकी हेल्प से हम एग्जिस्टिंग मार्केट को या न्यू मार्केट को सर्व कर सकते हैं इन डिफरेंट वेज. नाउ दिस ऑफन अकर्स इन इंडस्ट्रीज सच एज फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स एंड मटेरियल्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड मोर बाय डिस्कवरी ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स देन बाय देयर डिज़ाइन, बट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग मेजर चेंजेस इन अदर इंडस्ट्रीज एज वेल. अब यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये बेसिकली, अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, मटेरियल इंडस्ट्रीज़ में, एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस एज वेल. नाउ एट द एंड ऑफ दिस सेशन here is an exercise for you. You can try out these questions for yourself. So here the first question is,
What is science or technology driven innovation? Then the next question is, what is the process of innovation? So, this is the end of today's session. Thank you.